Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the revision of this circle. As you know that your UPSC examination will be started from the 31st January. So today we have the revision of the second chapter circle. Clear? पॉलिनोमियल को हम डिस्कस कर चुके हैं और पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, कैसे निकालते हैं आप उसके रूट्स, किस पॉलिनोमियल कितने रूट्स होंगे, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। So polynomial is an expression in which the power of x will be a whole number. If in any expression power of x is a whole number, then we can say that expression is a polynomial, otherwise that will not be a polynomial. Clear? So after checking the power of x, you can say it is polynomial or not. After checking the polynomial, you can check out that is it linear or quadratic or cubic or biquadratic. Clear? So it's depend upon the power of x. If power of x is 1, means I am talking about the highest power. If highest power of x is 1, then it will be linear. If highest power of x is 2, then it will be quadratic. If highest power of x is 3, then it will be cubic. Clear? So roots of cubic, zeros of cubic will be 3. Zeros of the quadratic equation will be 2. Zeros of linear polynomial will be 1. And zeros of biquadratic equation will be 4. So zeros depends upon the maximum power of x variable, and zeros will be equals to the power of x. Remember always it. Clear? So, and whenever we talk about the terms, if we have only single term in the polynomial, then it will be monomial. If terms is 2, then it will be binomial. If terms is 3, then it will be trinomial. Clear? But whenever terms is 4 or more than 4, then it will be multinomial. Clear? So we have two category of the polynomial. First is on the basis of number of terms, and second is on the basis of power. Clear? On the basis of terms, it will be monomial, binomial, trinomial, multinomial. But on the basis of power, it will be linear, quadratic, cubic and biquadratic equation. ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। इसके बाद में आता है टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं किसी अनदर पॉलिनोमियल से, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवीजन। सो आप उसको एक्चुअल डिवाइड किए भी नहीं चेक कर सकते हैं कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा। कैसे? जिससे डिवाइड करने जा रहे हो, मीन्स आई एम यूजिंग द टर्म डिवीजन। So put divisor equals to 0 and find the value of x. Suppose value of x is 1, then replace it into the dividend, जिसको डिवाइड करने जा रहे हो उसमें रख दीजिए x के प्लेस पर, आपका रिमाइंडर आ जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एंड इट इज अ शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर इन अ फ्यू सेकेंड्स। क्लियर? But whenever you did it by actual division, then that is a lengthy process and take more time. Clear? So avoid actual division whenever you want to find out the remainder. So use remainder theorem to find the remainder value. Clear? And procedure is very simple. Put divisor equals to 0 and find the value of x, and put that value of x into the dividend. समझ में आया कुछ? जिससे डिवाइड करने जा रहे हो उसको 0 के बराबर रखिए, वहां से x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को आप अपने डिविडेंड में जिसको डिवाइड करना है उसमें रखिए, x के प्लेस पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक आउट दैट इज इट फैक्टर और नॉट, तो उसके लिए क्या होगा, आप जैसे चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने के लिए, वैसे ही आप चलेंगे। यदि आपको चेक करना है
कि भाई x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए आप x प्लस 1 को 0 के बराबर रखिए। ठीक है, जब रखेंगे इसको आप 0 के बराबर तो x की वैल्यू आएगी -1। अब ये x की वैल्यू -1 रख दीजिए आप अपने इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पर, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद यदि इसकी वैल्यू आती है 0, तो तब तो हम कहेंगे कि भाई x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नॉट। सो रिमेंबर ऑलवेज whenever you obtain remainder value 0, then that will be a factor of that, otherwise not। क्लियर? तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो उसका फैक्टर नहीं है। बस इतनी बात आप याद रखें। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को हम अपने डिविडेंड में जिसको डिवाइड करना है उसमें रिप्लेस कर देंगे, x के प्लेस पर रिमाइंडर आ जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर आप एक बात कह सकते हैं कि भाई जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं मीन्स डिविज़र, वो डिविडेंड का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से आप फैक्टर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर। क्लियर? एंड इट इज़ अ शॉर्टेस्ट मेथड टू चेक आउट, and use it always whenever question is regarding for checking the it is factor or not, then you can use this method। clear? So in that chapter means polynomial, उसमें एक तो आता है डिवाइड करना। ठीक है, हाँ, जब पूछ रहे हैं आपसे हम कोसेंट की वैल्यू, ठीक है, whenever we want to find out the value of quotient, तो तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कोसेंट निकालने के लिए आपको एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए हम डिवाइड नहीं करते हैं। रिमाइंडर के लिए हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि कैसे निकालेंगे आप कोसेंट। जैसे सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 को। सो x प्लस 1 इज डिविजर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 इज डिविडेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दोनों को ही पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। दोनों में पहले पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। After arranging that in descending order, you can carry on. So first term in the dividend is x cube। हमारे डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है वो x क्यूब है, डिविजर में फर्स्ट टर्म x है। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब मिल जाए। सोचिए फटाफट, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब मिल जाए, वो हो जाएगा x स्क्वायर। सो x को हम ऑपरेट करेंगे x स्क्वायर टाइम्स, सो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों में करेंगे, x में करेंगे, 1 में भी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सो x स्क्वायर इंटू x बनेगा x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 बनेगा x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस एक कट जाएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। उसके बाद x स्क्वायर भी कट जाएगा एंड वी हैव ओनली 5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं कि x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आप देखिए कि भाई x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 2x स्क्वायर, वो हो जाएगा 2x। अब 2x की मल्टीप्लाई पहले आप x में करो तो बनेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की मल्टीप्लाई 1 में करो तो बनेगा 2x। उसके बाद साइन चेंज करें, माइनस माइनस ही कट जाएगा,
5x बच जाएगा, 2x बचेगा मेरे पास 3x -6। क्लियर? जो बचता रहे उसको नीचे लिखते रहेंगे। अब x को मल्टीप्लाई किससे करें कि 3x मिल जाए? वो हो जाएगा हमारे पास 3। सो 3 टाइम ऑफ x we have 3x, 3 टाइम ऑफ 1 we have 3। साइन चेंज करें, माइनस माइनस 3x से 3x कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक उतना ही नेगेटिव है। सो -6 -3 result will be -9। So you can observe that -9 is remainder, quotient is 2x plus 3 and divisor is x plus 1। क्लियर? चलिए अब हम रिवीजन करते हैं सर्कल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुने डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that the distance of that point to the fixed point is always remain constant। सर्कल अपने आप में एक ऐसा लोकस है, वो भी एक ऐसे पॉइंट का जो ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस हर बार एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहती है। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। क्लियर? लाइक दिस। सो याद रहे आपको कि जब सर्कल बनता है तो वो तब बनता है जब एक पॉइंट ऐसे मूव करे कि उसकी डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहे। सपोज पॉइंट इज हियर, सो फिक्स पॉइंट इज हियर, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस इज मूविंग पॉइंट which are moving in such a way that the distance of each and every time of it from the fixed point is always remain constant। And due to this fixed distance, this constant distance is said to be always radius of the circle। So this distance is always a radius of circle। This is origin, this is the center of the circle। क्लियर? सो डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है, तो आप देख लेना आप। अब चलिए चलते हैं इससे आगे। अब इस सर्कल चैप्टर में कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि आर्क, कोड, सेक्टर, सेगमेंट, वो सब डिस्कस करते हैं। चलिए आइएगा इधर। किसी भी सर्कल की बाउंड्री का एक स्मॉल सेगमेंट होता है उसकी आर्क। आर्क इज द स्मॉल पीस ऑफ द बाउंड्री। सर्कल जो सर्कमफ्रेंस है जो आप देख रहे हैं, उस सर्कमफ्रेंस का एक स्मॉल पीस इज सेड टू बी द आर्क। सो दिस इज आर्क। रिमेंबर, suppose starting point is A and ending point is B, so AB is the arc, but according to the length, arc can be categorized into two parts, minor arc as well as major arc। Minor and major, these words will be used according to the length of the arc। If length of the arc is less than the half of the circumference, यदि इस आर्क की लेंथ सर्कमफ्रेंस की लेंथ
कि आधे से कम है, जैसे कि इस सर्कमफ्रेंस का हाफ इधर होगा, तो यदि इसकी लेंथ लेस देन हाफ है तो हम बोलेंगे इसको माइनर, अदरवाइज इट विल बी मेजर. सो एनी आर्क इज सेड टू बी मेजर व्हेनेवर इट्स लेंथ इज मोर देन हाफ, and any arc is said to be minor whenever its length is less than half. Clear? So arc is of two types, minor arc and major arc. Clear? Now suppose we have a AB, that it will be minor arc. Clear? And बाकी जो बची रहेगा यहाँ पे it will be major arc. It is minor arc, it is major arc. Clear? चलिए आर्क के बाद में आता है कोड और सेकंड. सेकंड अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करके मूव कर जाएगी. सपोज इन दिस वे, this is secant, secant. So secant is a straight line which is passing through from the circle and divide it into two parts. So this is secant. But whenever we talk about the chord is a line which join the any two point of the boundary. जब आप सर्कल की बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड जनरेट होती है. जैसे सपोज यू हैव अ पॉइंट B and point C, and if we join these two points to each other, then we have a line from B to C. And line from B to C is a chord. So BC is the chord of this circle. Clear? This is chord. This is secant. तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेगमेंट और सेक्टर की. ठीक है, तो आइए जरा इधर. यदि आप सर्कल की बाउंड्री पर एक आर्क लें और उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें कुछ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर. सेक्टर इज अ रीजन which is formed by the arc as well as the radius of the circle. So this is a sector. This is sector. This is a central angle. An angle which is formed by the end point of the arc at the center of the circle. Listen again. The angle which is formed by the end point of any arc to the center of the circle is said to always central angle. Clear? So sector is the region which is formed by arc with the radius. Clear? लेकिन सेक्टर भी दो तरह से होता है, क्योंकि जब आर्क दो कैटेगरी में हो गई, माइनर एंड मेजर, तो सेक्टर भी दो कैटेगरी में हो गया, माइनर सेक्टर एज वेल एज मेजर सेक्टर. अ सेक्टर इज सेड टू बी माइनर whenever arc is minor. If arc is minor, then it will be minor. If arc is major, then it will be major. Remember always. ठीक है, दोबारा फिर सुन लीजिए ध्यान से. यदि आर्क माइनर है तो सेक्टर होगा माइनर, और यदि आर्क मेजर है तो सेक्टर होगा मेजर. ये बात आप याद रखें. क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं. तो यहां पे ध्यान से देखिए, जो मेरे पास आर्क है, ये आर्क फिलहाल अपने आप में माइनर है.
So due to this, it will be minor sector, and this area will be major sector. Clear? So minor sector will be formed with the help of minor arc as well as radius, while the major sector will depend upon the arc. If arc is major, then that will be major sector. Clear? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट की. चलिए सुनिए ध्यान से. ये मेरे पास एक सर्कल है. यदि एक कोड आप इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर दें, जैसे इस तरह से, इस कोड के ड्रॉ करते ही यहां पे इस सर्कल के दो पार्ट हो गए, below from the chord and above from the chord. Below from the chord is minor segment and above from the chord is major segment. Segment is the area of the circle which is formed by the chord as well as the arc. इस आर्क ने और इस chord ने मिलकर के बनाया एक रीजन, एक एरिया. So it will be segment, but segment is again of two types, minor segment as well as major segment. A segment is said to be minor segment whenever the supporting arc is minor. Clear? If arc is minor, then it will be minor segment, but whenever arc is major, then it will be major segment. Clear? So this is means below from the chord is minor segment, and this is major segment. क्लियर? चलिए इसके बाद में कुछ कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं. जैसे कि आप कैसे बताएंगे कि भाई कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है या सर्कल की बाउंड्री पर है या फिर सर्कल के अंदर है. ठीक है, तो जब कभी आपको डिसाइड करना पड़ जाए कि पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्टिव टू द सर्कल क्या होगी, तो उसका एक मेथड है कि आप पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लें सर्कल के सेंटर के साथ. पॉइंट की डिस्टेंस निकालें सर्कल के सेंटर से. इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू सेंटर इज लेस देन टू रेडियस, देन दैट पॉइंट विल लाइज इनसाइड द सर्कल. व्हेनेवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, then that point is lies on the boundary of a circle. If the distance from the point to the center of the circle is greater than the radius, then that point is always lies outside the circle. Clear? So it's depend upon the distance from the point to the center. पॉइंट से सेंटर तक जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाउंड्री पर है या फिर बाउंड्री से बाहर है. क्लियर? सपोज वी हैव अ सर्कल,
अब सुनिए आप ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास में ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और जो पॉइंट है वो सपोज अभी इधर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सेंटर ओ। चलिए तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप ए से ओ तक की निकाल लेंगे रेडियस, मींस डिस्टेंस ए ओ निकाल लेंगे आप। मान लीजिए पॉइंट चला गया बाउंड्री पर, तो आप फिर से ए ओ निकाल लीजिए, और पॉइंट चला गया सरफेस से ऊपर, तो फिर से आप निकालिए डिस्टेंस। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, if distance AO is less than 2 radius, then point A will lies in the inside of the circle, तब point A circle के अंदर होगा। if the distance from the point to the center means AO is equals to the radius of this circle, then point lies at the boundary of a circle. Suppose distance AO is greater than 2 radius, then point will lies outside the circle. So in this case AO is less than 2 radius. In this case AO is equals to radius, and in this case AO is greater than 2 radius. So these are three cases. In this case, point will lies inside the circle because AO is less than 2 radius. In this case, point lies on the boundary of a circle because AO is equals to the radius. In this case, point A lies outside the circle because distance from the point to the center means AO is greater than 2 radius. क्लियर? चलिए, आपके यहाँ चल रहा था हमारा ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन को हम जब आपका हो जाएगा रिवीजन उसके बाद कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ रूल। रूल क्या है, सुनना ध्यान से। रूल ये है कि जब कभी आप कोड पर सर्कल के सेंटर से डालते हैं परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को मिड पॉइंट में करता है बाइसेक्ट। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड इज ऑलवेज बाइसेक्ट दैट कोड इनटू अ मिडिल पॉइंट ऑलवेज। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड इज ऑलवेज बाइसेक्ट टू दैट कोड। सपोज कोड इज दिस, सेंटर इज दिस, perpendicular is this, then this point M will be the middle point of the chord AB, and we can prove it with the help of the statement. चलिए समझ लें इस बात को। Suppose center is O, now join O to A and O to B. Now move in two triangle OMA and OMB. इन दो ट्रायंगल में आप मूव कीजिए। विद द हेल्प ऑफ थ्री स्टेटमेंट वी विल प्रूव इट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर, अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। OM इज कॉमन टू बोथ। उसके बाद OMA एंड OMB बोथ आर राइट एंगल, एंड आफ्टर दिस OA एंड OB both are equal to each other because both are radius of the circle. Clear?
तो जब हम ट्रायंगल OAM में और OBM में मूव करते हैं तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल OMA एंड OMB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ईच अदर with the help of RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया। OM दोनों में कॉमन है। उसके बाद OMA और OMB ये दोनों एंगल बन गए राइट एंगल। उसके बाद OA एंड OB दोनों रेडियस है सर्कल की, बोथ आर रेडियस, सो बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। So in this way, with the help of RHS, OMA and OMB both are congruent triangle to each other, and this implies that AM equals to MB by CPCT. Corresponding part of congruent triangle will be equal to each other. So AM equals to MB. So with the help of this, we can say a perpendicular from the center of a circle to the chord is always bisect that chord. Clear? ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद में एक बात और याद रखें, if you have two chord in the circle of same length, if you have two chord in the circle of same length, then they will be at a equal distance from the center. यदि सर्कल में आप दो कोड लेते हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, तो वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी। क्लियर? मान लीजिए एक कोड ये है, एक कोड ये है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो सर्कल के सेंटर से जितना दूर एक कोड होगी उतना ही दूर दूसरी कोड होगी। ठीक है? सो डिस्टेंस फ्रॉम द कोड टू द सेंटर विल बी इक्वल डिस्टेंस। लेकिन कब? जब कोड की लेंथ बराबर है। कोड की लेंथ बराबर यदि नहीं है तो उनकी सर्कल से डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। ये बात याद रखें। ठीक है, चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी इन दिस वीडियो रिगार्डिंग टू एनी कंसेप्ट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप और बाय कॉल।